All right. So now let us start with the discussion of coordinate geometry. First of all, it should be made very clear that what is coordinate geometry and why do we need it. See, if you were the general of an army, imagine, and you're deploying your troops to a certain land where you believe that war may take place, battlefield. There, most of the times, it is not a habitated land. People are not usually residing in those areas. And therefore, there are no predetermined names for locations on the battlefield. Like wherever we are living, it is densely habitated. So we have different names for different locations. But if we land on a battlefield, there is no predetermined name for locations. However, the general has to still make a plan for the war. It has to also designate the zone for each of his majors and colonels and decide where they should be stationed on the battlefield. But how are they going to talk about these locations? Now, of course, they don't want to spend too much time giving names to places. Rather, they want to make it very tactical. What can they do? They will decide a particular point on the battlefield as the origin. And then they are going to set the x-axis and y-axis onto the battlefield. Now you see that once everybody knows where the origin is, what is the direction of the positive x-axis and what is the direction of the positive y-axis, every single point on the battlefield can be uniquely described using coordinates. That is how fighter jets communicate their location. They will not say that I see London Bridge beneath me. They won't say I see the peak of Mount Everest beneath me. They only talk in terms of coordinates, right? This much degree east, this much degree west. Well, latitude, longitude is also kind of a coordinate system. Although it is a polar coordinate system, we are going to study the Cartesian coordinate system. Okay, the Cartesian coordinate system is a system where a plane, a flat plane, is divided into 8 regions. What 8 regions? The first quadrant, the second quadrant, the third quadrant, the fourth quadrant, the positive x-axis, the positive y-axis, the negative x-axis, and the negative y-axis. Majorly, of course, most of the regions fall in one of the quadrants, but some of the regions or points may also lie on the lines, the axis. In this system, how are we going to describe the address of a location? Well, it is very convenient. When you pick a certain point, you describe its location by presenting 2 numbers. The first number tells you how distant the point is from the y-axis. What is the distance of the point from the y-axis? Maybe it is 5 units. And the second one tells you how much distant it is from the x-axis. Another way to think of it is that if you are looking at a point, then its address, which is also known as coordinates, can simply be found by dropping a perpendicular line from the point onto the axis and seeing where does it meet on the respective axis. Where it meets on the x-axis would be its x coordinate, where it meets on the y-axis would be its y coordinate. And the x coordinate is written before the y coordinate while presenting the coordinate of a certain point. Obviously, the rules of marking coordinates you people know. So you know that every point on the first quadrant has both positive x and y coordinate. Second quadrant has negative x but positive y. Third quadrant has negative x and negative y. And the fourth quadrant has positive x and negative y coordinates. On the x-axis, the y coordinates are 0, and on the y-axis, the x coordinates are 0. Is it clear? Perfect. Now, if 2 points are given to you, of course, with their coordinates, of course, when you join them, it forms a straight line segment. Whenever we connect 2 distinct points, it forms a straight line segment. And therefore, it makes sense to ask, what is the length of this line segment? This length of the line segment denotes the distance between the 2 points. So this is my first question to all of you. Given these 2 points, can you tell me what would be the distance between these 2 points? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो अगर मैं ये इमेजिन करूं कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज की तरफ इसको मान लिया जाए, तो मेरे को क्लियरली पता है कि ये वाली लंबाई कितनी है, तो ये 5 से 8, क्योंकि ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 5, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 8, तो 5 से 8 कितना का गैप है 3, और ये यहां से यहां कितना बड़ा लाइन है, तो ये y कोऑर्डिनेट मेरे को दिख रहा है 6, ये y कोऑर्डिनेट मेरे को दिख रहा है 2, तो ये कितने का गैप है 6 - 2 विच इज 4, तो ये 3 है, ये 4 है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये लेंथ 5 है। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा? ये कर लो। इलक्या बिल्कुल सही आंसर। अगर ऐसे लेंथ में जा रहे हैं कि हाँ। अगर 2 और -3 और 2 है तो हाँ। फिर -3 -2 -1 0 को गिने या लाइक बस ऐसा अपने आप से पूछो कि -3 और 2 नंबर लाइन में एक दूसरे से कितने दूर हैं? कितने यूनिट दूर है बताओ? सर 5 यूनिट दूर है, बस ऐसे सोचना है। अभी देखो a है -3,4 पे, b है 2, -8। डायग्राम बनाना ही जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। तो ये लंबाई निकालना है मुझे। फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूंगा इस तरीके से। अभी मेरे को दिव्यांश बताओ तुम, अगर इस वर्टेक्स को मैं c नाम दे दूं तो AC की लंबाई कितनी है? ये पॉइंट है 4 और ये पॉइंट है -8, तो यहां से यहां 4, यहां से यहां 8,
टोटल लंबाई 12 मान रहे हो। कंफ्यूजन हटाने के लिए ना मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं ऐसा सोचो, एक शहर का टेम्परेचर है 4 डिग्री और दूसरे शहर का टेम्परेचर है -8 डिग्री, तो इनके टेम्परेचर में कितने का फर्क है? 12 डिग्री का फर्क है। फर्क निकालना है, फर्क, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि एक को दूसरे से माइनस करना है या वो सब, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना है? ये CB 5, क्योंकि ये है -3 और ये वाला B का कोऑर्डिनेट है 2, तो x कोऑर्डिनेट्स का फर्क देख के पता चला ये 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से AC का लंबाई कितना होगा? डिस्टेंस 13, ठीक है। यानी कुल मिला के ना जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो करना क्या है, मेरे को देखना है कि भाई दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में कितने का फर्क है। जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम ही नहीं बनाना है, बस फर्क देखना है। 5 से 8 में 3 का फर्क है, 2 से 6 में 4 का फर्क है। तो मेरे ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो छोटे साइड्स हैं, इनको मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है अब। यानी इससे मेरे को एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट है A x1, y1 और B x2, y2, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? तो पहले मैं देखूंगा कि भाई मेरे x कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क है। अब वो चाहे तुम x1 x2 करो, x2 x1 करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क में फर्क नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर तुम -3 -2 करते या 2 -3 करो, दोनों में आंसर क्या आ रहा है? आंसर पहले अलग आ जाए, -3 -2 होता है -5, 2 -3 आता है -5, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, एक में +5 आ रहा है, क्योंकि बाद में तो स्क्वायर ही करना है। अब -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर सेम होता है, तो x2 x1 लिखो, x1 x2 लिखो, मेरे को नहीं, मतलब मैं इनफैक्ट ये भी लिख देता हूं x2 x1 का मॉड। यानी कि मॉड लगाने से मैं साइन नहीं देखता हूं, मैं हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देता हूं। जब मेरे को पता है कि भाई लंबाई हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो मैं बेकार में नेगेटिव साइन क्यों इन्वॉल्व करूं? ठीक है, तो इसी के साथ हो जाए स्क्वायर। x2 x1 का जो भी आ रहा है, गैप बिटवीन x2 x1 उसका स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ y2 y1। मॉड लिखने से ये समझ में आ रहा है कि y1 y2 लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, का स्क्वायर, और उसका करूंगा मैं रूट ओवर। तो मेरा क्या निकल के आएगा? A और B के बीच का डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब इसी को क्या कह दिया जाता है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं। करो ये क्वेश्चन। यहां पे मैं हिंट ये देना चाहूंगा कि भाई निकालो AB की लंबाई, BC की लंबाई और CA की लंबाई, और वहां से सोचना शुरू करो। मैं निकालता हूं। सबसे पहले तो AB का लेंथ क्या होगा? तो A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 का, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। Y कोऑर्डिनेट में फर्क है 2 का, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक तरीके से AB का स्क्वायर ही अगर निकाल दूं तो कितना आ जा रहा है? 9 + 4 जो कि होता है 13। ये AB का स्क्वायर है, तो AB का लेंथ √13 होगा। BC का लेंथ कितना होगा? तो BC का स्क्वायर ही निकाल देते हैं। 5 से 9 4 का फर्क, 8 से 10 2 का फर्क, 16 + 4 20, ये BC का स्क्वायर है। और CA का स्क्वायर कितना होगा? 9 से 2 7 का फर्क, 6 से 10 4 का फर्क, तो ये आ गया 49 + 4 53 होता है, ठीक है। तो ये तो मेरे निकल के आ गए AB BC CA के स्क्वायर्स। सबसे पहले अगर मेरे को समझना है कि ये ट्रायंगल है भी कि नहीं, तो देखो कभी भी 3 पॉइंट मिलके अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे वर्सेस कभी भी अगर 3 लाइन मिलके ट्रायंगल बना रहे होंगे, तो ये हम लोग दोनों के बीच में फर्क कैसे पहचानेंगे? अगर कभी भी सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड आ जाता है, यानी AB + BC AC से बड़ा होना चाहिए, AC + AB BC से बड़ा होना चाहिए, और BC + AC AB से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर ABC फॉर्म्स अ ट्रायंगल। बट अगर AB + BC AC के बराबर आ जाए, तब हम समझेंगे कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा। तभी ना स्ट्रेट लाइन में ही होगा ना ये चीज की AB + BC का लेंथ जोड़े तो एग्जैक्ट AC के लेंथ आ गया। अब यहां पर ये देखना है कि ये चीज क्या, कौन सा केस हो रहा है कि AB, देखो AB है यहाँ पे √13 और BC यहाँ पर है √20। √13 और √20 को जोड़ के 53 का रूट आएगा क्या? CA होता है √53। सर √53 तो नहीं आएगा ना सर, 49 + 4 इज √53, 49 + 16 करना होगा सर। ओह सॉरी 49 + 16 65 है। 65, तो यहाँ लिख दो √65। तो AB + BC करके √65 आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, क्योंकि √65 8 से बड़ा है, 8 पॉइंट समथिंग होगा। √20 कितना होगा? वो 4 और 5 के बीच में होगा, 5 से तो छोटा ही होगा। और ये जो है कितना होगा? √13, वो 4 से छोटा होगा। बट हम लोग कैसे पता लगाए कि AB + BC एग्जैक्टली कितना है और एग्जैक्टली CA होगा कि नहीं? तो पता लगाने का एक तरीका है, क्योंकि AB + BC को अगर AC से कंपेयर करना है तो मैं उनके स्क्वायर्स को भी कंपेयर करके बता सकता हूं। AB + BC कितना हो गया? तो √13 + √20 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 13 + 2√13 × √20 + 20, और इधर AC का स्क्वायर हो जाएगा 65। 13 + 20 कितना हो जाता है? 13 + 20 हो जाता है 33, और ये हो गया मेरे पास √13 × √20। तो √20 को पहला बात हम लोग लिख सकते हैं 2√5, तो ये हो जाएगा 4 √65, है कि नहीं? 13 × 5 हो जाएगा 65, 4 √65, और इधर में मेरे पास है 65। दोनों साइड 33 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 65 - 30 35 32। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया √65, ये आ गया 8। अब बताओ √65 और 8 में क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल। ये पता चलता
पता है कि अभी AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। दिख रहा है ये चीज? लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा बड़ा आ गया ना, बट क्लोज कॉल है। रूट 64 होता तब 8 के इक्वल हो जाता, क्लोज कॉल। इसलिए अंदाज से बताने जाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहां पर कंक्लूजन पता चला कि AB प्लस BC is greater than AC, therefore ABC is a triangle. But triangle होने के लिए sum of any two sides must be greater than the third side. Sum of the two shorter sides should also be greater than the third side. तो अब ये triangle है, पहला ऑप्शन गया कट। अब बचे हुए तीन ऑप्शंस में से सिलेक्शन इजी है। आइसोसेलेस हो सकता है क्या? क्लियरली तीनों का लेंथ अलग है तो आइसोसेलेस तो नहीं हो सकता, वो गया। अब अक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? तो राइट ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन होता AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये कंडीशन होना पड़ता। बट अक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना पड़ता है पता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन AC स्क्वायर। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज अगर ट्रायंगल है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is less than AC square। मैं पाइथागोरस इक्वेशन सब बताते हैं और भूल जाते हैं पाइथागोरस इनइक्वालिटीज। अगर sum of the squares of the two shorter side is equal to the square of the third side, the triangle is right angle. But if the sum of the squares of the two shorter side is greater than the square of the third side, then it is an acute angle triangle. और अगर sum of the squares of the two shorter side is less than the square of the third side, then it must be obtuse angle triangle. तो हम लोग कौन से केस के साथ डील कर रहे हैं भाई? 13 plus 20 कर रहे हैं तो it is being less than 65. तो ये केस हो गया acute angle triangle का। C is the correct answer। ठीक है। वैसे भी हम लोग जब ये कंपैरिजन किए तो देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होते होते बचा है, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा ही रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ही रहा होगा। 3 पॉइंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे पड़े तो ट्रायंगल काफी ऑब्ट्यूज है। ठीक है, करो 3 मिनट में हो जाना चाहिए वैसे ये सवाल। Whenever the question asks for points, you have to mention coordinates. देखो, there are two ways to solve this problem. First of all, any point that lies on the x-axis. What is common to all the points that lie on the x-axis? What is special about their coordinates? Y coordinate is equal to 0. So I can start with an assumption कि let the point that we are trying to find, let the point have a coordinate a comma 0. I can start like this. I'll call the point P. So the point P has a coordinate a comma 0 and I will call this point point A, the one given in the question. So that point is A 5 comma 8. Question also says distance between P and A must be 10 units. Now using the distance formula, what can I say? कि भाई distance between AB का स्क्वायर अगर करते ताकि रूट ओवर नहीं लिखना पड़े राइट हैंड साइड में, वुड बी A minus 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 minus 8 का होल स्क्वायर। अब 8 minus 0 लिखो, 0 minus 8 लिखो, इट्स द सेम थिंग। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज हाउ मच? एंड डिस्टेंस वी नो इट्स 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट्स, a स्क्वायर minus 10a plus 25 plus 64. If we bring the 100 onto the right hand side, तो a square minus 10a plus 25 plus 64 for 89. अब 89 minus 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? minus 11, correct? So we have minus 11. Now this is the quadratic equation. We have already studied quadratic equation. How will we solve this equation? We can solve it with factorization. A plus 1 into a minus 11. Therefore a equal to minus 1 or positive 11. अब now here there is no reason to reject one answer. Coordinates है तो negative भी हो ही सकता है। हम लोग मान के चले थे the point is a comma 0, right? minus 1 comma 0 and 11 comma 0. लेकिन if you people want, you can also just solve this question strictly geometrically. Although this won't be accepted in school, you could have done it strictly geometrically. How? मेरे को point दे दिया है 5,8 and they are asking कि भाई on the x-axis find points which are at a distance of exactly 10 unit away. तो 10 unit away point यहाँ मतलब यहाँ पे कहीं हो सकता है, बट दूसरे साइड 10 यूनिट जाके यहाँ पर भी कहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स सेंस दैट देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स, है ना? सो हाउ डू वी फाइंड दैट डिस्टेंस? पहला बात तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये इसके y कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 8, सो दिस डिस्टेंस इज 8 यूनिट। अब वी वांट दैट दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 10, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम we'll be able to calculate this distance. ये distance कितना आ जाएगा by Pythagoras theorem? 6 units. Similarly, it can be done on the other side as well. तो Pythagoras theorem से कितना आ जाएगा? 6 units. Because this length on this side is also 10. See, ये 5,8 के just vertically below, this point is going to be 5,0. अब we can go 6 units ahead of it, which will give me 11,0, and we can go 6 units behind it, which will give me minus 1,0. 5 के 6 units पीछे is minus 1,0. So that is how you can get the two answers. All right. So by condition, do you mean the values of x and y? There can't be just one value of x and y. So by Yes, sir. condition, I just mean condition. Actually, it will turn out to be a relation between x and y. I will solve the question. Even before we solve the question, I would like to draw a rough diagram of the situation though. ठीक है? अंदाज से I will mark the point 2,5, call the point A.
ठीक है, एंड द अदर पॉइंट इज बी 8,11। अच्छा टेल मी समथिंग कि भाई एक ऐसा पॉइंट बताओ P जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो ऐसा कोई पॉइंट है भी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है, शायद सबसे पहले कोई नॉर्मल आदमी यही पॉइंट बताएगा एकदम बीचों बीच, लेकिन एक पॉइंट यहां पर भी हो सकता है जो दोनों से सेम डिस्टेंस में है, एक पॉइंट यहां पर हो सकता है कहीं सेम डिस्टेंस में दोनों से, है ना? तो ऐसे इस साइड भी हो सकता है। ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा एक और सवाल है तुम लोग से कि अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को बना दूं जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सर एक लाइन मिलेगी। हाँ, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पहले, तो ये मेरे को पता है। यानी मेरा वो कोई भी पॉइंट हो x, y, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट x, y, वो कुछ ऐसा x, y होना चाहिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। यानी कि मेरे x और y के ऊपर जो कंडीशन है वो एक लीनियर इक्वेशन आना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करने से पहले ही मेरे को एक बात ऑलरेडी पता चल चुका है कि मेरा आंसर एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आ गया? ऐसे ये स्ट्रेट लाइन कौन सा स्ट्रेट लाइन है? ध्यान से देखोगे तो इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को घुमा के ये भी कहा जा सकता था, अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन होता, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो भी हम लोग अब जो करने जा रहे हैं वही करके आंसर निकालते हैं। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं x, y जो कि इक्वी डिस्टेंट है A से और B से। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई सबसे पहला बात है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है, तो उनका स्क्वायर भी सेम होगा। स्क्वायर में इसलिए इन्वॉल्व कर देता हूं तो क्योंकि मेरे को रूट लिखने का मन नहीं करता आगे चल के। तो अब मैं लिख सकता हूं PA का डिस्टेंस क्या है, तो x कोऑर्डिनेट्स में फर्क x - 2 का, y कोऑर्डिनेट्स में फर्क y - 5 का, ये हो गया PA स्क्वायर। PB क्या होगा? x में फर्क x - 8 का और y में फर्क y - 11 का। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दूं यहां, अब कर दूं, बोलो। स्वैप कर दिया, x वाले टर्म्स लेफ्ट पे, अब a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा सकता हूं। तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 2x - 10 इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा? x जाएगा कट, -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 6। राइट साइड में क्या होगा? 2y - 16 और y जब कट जाएगा -11 प्लस 5 हो जाएगा -6, प्लस 6 -6 कट गया, -1 आ गया, तो आ गया 2x - 10 इज इक्वल्स टू -2y प्लस 16, तो 2x प्लस 2y आ गया 26, x प्लस y आ गया 13। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 13 ही वो कंडीशन है, मतलब ऐसे x, y जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं वो वाले पॉइंट्स ठीक A और B से इक्वी डिस्टेंट होंगे। यानी पॉइंट 10,3 ले लो, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा, या पॉइंट 7,6 ले लो, वो भी इक्वी डिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, चलो सर बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।